हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन गाइस। नौकरी समाचार चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं डिफेंस से हो गया या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ एंड try to update you people via my YouTube channel. So I hope you guys will definitely support me and you will subscribe to my channel. And thank you so much for constantly supporting me. So let's have a look and start the video. So basically आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉई अलाउंस इंक्रीज 2024 के बारे में। सो जो डीए हाइक की बहुत टाइम से इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है और एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं और क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल पे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है डियरेंस अलाउंस पे 4% इंक्रीमेंट करने के लिए। सो गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया है डियरेंस अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, और जो डिसीजन है वो 7 मई 2024 को लिया गया, जो कि मीटिंग हेल्ड की गई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है। और ये जो डियरेंस अलाउंस है वो 50% आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है। सो अगर ये इंक्रीमेंट होता है तो इसके बाद डेफिनेटली जो अदर अलाउंसेस होते हैं, और ये जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो आने वाला जुलाई टू दिसंबर वाला 6 मंथ का टाइम पीरियड है, क्योंकि आपको पता है पूरे साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है अलाउंसेस में। तो आने वाले टाइम पे ये मतलब इंक्रीज़ होगा जुलाई टू दिसंबर वाले में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ स्टेटेड दैट द नोटिफिकेशन regarding this decision was released in April, which specifies that gratuity has also been raised for the central employees. Under this directive, an automatic 25% increase in the children's education allowance, hostel subsidy, retirement gratuity and gratitude will also be added. मतलब जो अदर अलाउंसेस है जैसे हो गया चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल सब्सिडी हो गया, जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होता है उसमें, और जो अदर अलाउंसेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर HRA, सो उसमें भी 25% इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस हैं। So this increment in gratuity and other allowances will be provided whenever dearness allowance reaches 50% of the basic salary due to the increments. So as stated, when DA is increased by 50% of the basic pay, the retirement and the death gratuity will also rise by 25%. So this means that from January 1, retirement and death gratuity will increase from the existing 20 lakh to 25 lakh, which is a 25% increase. The Department of Pension and Pensioners Welfare released the notification regarding this. This allowance will ensure that central government employees will have a financial security even after the retirement and will help their families and change the cost of living. So an important thing to note is that the dearness allowance will be provided to government employees while death relief will be given to pensioners. So dearness allowance and dearness relief usually will be revised twice a year, which is based on the percentage increase in the All India Consumer Price Index for industrial workers. The revision takes place in January with announcements made in March or April and again in September or October. So additionally, the central government has restructured the formula for calculating DA and DR for government employees and also for pensioners, which will provide flexibility and a fair transparent system for adjusting their allowances. So that was the important part which I wanted to conclude in my video. So I hope you guys must have understood. और अगर मुझे अपडेट कीजिए आप लोग कौन लोग हैं जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली मैं इंग्लिश अलॉन्ग विद दैट हिंदी दोनों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में समझने में तो गाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी ना, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, सो दैट जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो दोनों लैंग्वेजेस, जिसको हिंदी नहीं आता है वो हिंदी में इंग्लिश में अंडरस्टैंड करें, और जिसको बेसिकली हिंदी नहीं समझ आती है तो वो क्या कर सकते हैं इंग्लिश में समझ सकते हैं, और जिसको
हिंदी समझ आता है या नहीं आता, या इंग्लिश आता है, मतलब इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है जिस लैंग्वेज में, वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये था मेरा इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। So that's all guys in this part of video. So thank you so much for constantly supporting me. So thank you all and stay tuned for my next video.